Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.4 महाजनपद के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The centuries before the establishment of the Mauryan Empire, the period which was the development of the Kosala and the Magadh kingdoms, were a period of a relatively rapid social and economic change. मौर्य साम्राज्य की स्थापना से सदियों पहले की अवधि के दौरान कौशल और मगध राज्यों का विकास हुआ, जो कि अपेक्षाकृत बहुत तेजी से तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का काल था। We find the breaking into small pieces of tribal polities, the development of the caste model, and the move of the rice lands of the eastern Gangetic Valley. इस समय में हम कबीलाई राज्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरते, जाति मॉडल का विकास होते तथा चावल उपजाने वाली पूर्वी गंगा घाटी की ओर कूच करते हुए देखते हैं। In times of the disintegration of old social ties, during the establishment of new ways of being in social and political relationships, we find idea based on great change. अब देखिए, पुराने सामाजिक संबंधों के विघटन के समय में सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में नई रीतियों की स्थापना के दौरान हम महापरिवर्तन पर आधारित विचारधारा विकसित होते देखते हैं। The emergence of Buddhism and Jainism was a result of this upheaval. बौद्ध और जैनों का आविर्भाव इस परिवर्तन का परिणाम था। From their original settlements in the Punjab region, the Aryans gradually began to penetrate eastwards, clearing dense forest and establishing tribal settlements along the Ganga and Jamuna plains between 1500 and 1800 BC. अब देखिए, बोल रहा है 1500 से 800 ईसा पूर्व के बीच गंगा और यमुना के मैदानों में घने जंगलों की सफाई करते हुए, कबीलाई बस्तियों की स्थापना करते हुए आर्यों ने पंजाब क्षेत्र की अपनी मूल बस्तियों से धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया। By around 1500 BC, most of the northern India was inhabited and had been brought under cultivation, facilitating the increasing knowledge of the use of iron implements, including ox-drawn ploughs, and spurred by the growing population that provided voluntary and forced labor. 500 ईसा पूर्व के आसपास तक उत्तरी भारत के ज़्यादातर भागों में लोग बस गए थे तथा वहां खेती होने लगी थी। बैल से चलने वाले हलों सहित लोहे के औजारों के उपयोग से बढ़ते ज्ञान की बदौलत स्वैच्छिक तथा बेगार श्रमिक उपलब्ध कराने वाली जनसंख्या वृद्धि के चलते नदी पर आधारित होने वाली और अंतर्देशीय व्यापार के फलने फूलने से गंगा के तट पर बसे कई नगर व्यापार, संस्कृति और विलासी जीवन के केंद्र बन गए थे। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एज रिवर बेस्ड एंड इनलैंड trade flourished, many towns along the Ganga became centers of trade as a culture and luxurious living. Increasing population and surplus production provided the basis for the emergence of independent states with fluid territorial boundaries over which disputes frequently arose. आगे देखिए, बढ़ती जनसंख्या और अधिक उत्पादन ने स्वतंत्र राज्यों के विकास के लिए आधार तैयार किए, जिनकी अनिश्चित सीमाएं थीं तथा जिन्हें लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं।
आगे देखिए. The basic administrative system headed by tribal chieftains was transformed by a number of regional republics or hereditary monarchies that devised ways to appropriate revenue and to conscript labor for expanding the areas of settlement and agriculture farther east and south beyond the Narmada River. कबीले के मुखिया के नेतृत्व वाली मूल प्रशासनिक प्रणाली अनेक प्रादेशिक गणराज्यों अथवा वंशानुगत राज्यों में रूपांतरित की गई, जिसने सुदूर पूर्व और दक्षिण में नर्मदा नदी से आगे बस्ती और कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उपयुक्त राजस्व वसूली तथा श्रमिकों से जबरन काम कराने के तरीके इजाद किए. These emergent states collected revenue through officials, maintained armies and built new cities and highways. इन विकसित राज्यों में अधिकारियों द्वारा राजस्व इकट्ठा किया गया, सेनाएं रखी गईं और नए शहरों व राजमार्गों का निर्माण किया गया. By 600 BC, 16 such territorial powers stretched across the North India plains from modern-day Afghanistan to Bangladesh. 600 ईसा पूर्व तक आधुनिक अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक उत्तर भारत के मैदानों में ऐसे 16 शक्तिशाली राज्य बन गए थे. The right of a king to his throne, no matter how it was gained, was usually made lawful through elaborate sacrifice rituals and genealogies, that is, history of members of family from past to present, concocted by priests whose ascribed to the king divine or superhuman origins. अपने सिंहासन के लिए राजा के अधिकार को चाहे वह कैसे भी मिला हो, बलिदान युक्त अनुष्ठानों और पुरोहितों द्वारा कानूनन सम्मत बनाया गया. In the text we find reference to the emergence of 16 महाजनपद्स. ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों के विकास के संदर्भ मिलते हैं. Important among them were Magad, Koshala, Kasi, Avanti, Vaishali, Lichavi, etc. Mahajanpads were of two kinds, as discussed below. उनमें से मगध, कौशल, काशी, अवंती, लिच्छवी आदि महत्वपूर्ण थे. महाजनपद दो प्रकार के थे जिनका नीचे उल्लेख किया गया है. सबसे पहला है मोनार्कियल महाजनपद, राजतंत्रीय महाजनपद कहते हैं इनको. फर्स्ट देयर एग्जिस्टेड मोनार्कियल टाइप्स where the king or chieftains was the head of the territory. पहले प्रकार का राजतंत्र वह था जिसका राजा अथवा मुखिया उस क्षेत्र का प्रधान होता था. In this type, the Vedic ceremonies and Brahmins were given much importance. इस प्रकार के राजतंत्र में वैदिक अनुष्ठानों और ब्राह्मणों को महत्व दिया जाता था. The kings performed Vedic sacrifices in these regions. अब देखिए, इन क्षेत्रों में राजा वैदिक बलियां देते थे. For instance, Kosala belonged to the category of monarchical Mahajanpad. Prasenjit, the king of Kosala, was known to have performed several sacrifices. उदाहरण के लिए कौशल राजतंत्रीय महाजनपद की श्रेणी में आता था. कौशल का राजा प्रसेनजीत अनेक बलियां देने के लिए प्रसिद्ध था. रिपब्लिकन महाजनपद, गणराज्य महाजनपद. The second type among Mahajanpads was Republican or oligarchic, which differed from the monarchic
स्टेट्स। महाजनपदों का दूसरा प्रकार जो था वो रिपब्लिकन होता था, जिसको कहते हैं गणराज्य अथवा कुलीन तंत्रीय था, जो राजतंत्रीय राज्यों से अलग था। In this second category, the king was selected from the group of people called rajas. इस श्रेणी में राजा का चयन राजा कहे जाने वाले लोगों के समूह से किया जाता था। There is reference to assemblies called sabha, where the members used to have discussions regarding a particular matter, then the item was put to vote. अब देखिए, असेंबलियों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें सभा कहा जाता था। इनमें सदस्य विशेष मामलों पर चर्चा करते थे और बाद में उस पर मतदान होता था। In one such assembly, there is reference to the existence of 7,707 rajas who represented the class of Rajanyas who owned land that was cultivated by das, कर्मकर्स और लेबरर्स। इनमें सदस्य विशेष मामलों पर चर्चा भी करते थे। ऐसी एक सभा में 7,707 राजाओं की मौजूदगी का उल्लेख मिलता है जो राजन्यास की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनकी अपनी भूमि होती थी, जिन पर दासों, कर्मकारों अथवा मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। The rajas were known for their ability to fight. राजा अपनी युद्ध करने की योग्यता से जाने जाते थे। In this category, Vedic sacrifices were not given much importance, and the Brahmins were given number 2 social status after the Kshatriyas. The main source for the study of these Mahajanpad is the Buddhist text. इस श्रेणी में वैदिक बलियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था और ब्राह्मणों को क्षत्रियों के बाद दूसरे क्रम का सामाजिक दर्जा दिया गया था। इन महाजनपदों के अध्ययन का मुख्य स्रोत बौद्ध ग्रंथ है। आगे देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्कियल महाजनपद एंड रिपब्लिकन महाजनपद। राजतंत्रीय महाजनपदों और गणराज्य महाजनपदों में संघर्ष। द वृज्जी Confederacy, union of several states near the foot of Himalayas, was a powerful oligarchy which challenged the supremacy of some monarchical states. हिमालय के बीच निचले भाग के निकट वृज्जी राज्य संघ, अनेक राज्यों का संघ, शक्तिशाली कुलीन तंत्र था जिसने कुछ राजतंत्रीय राजाओं के प्रभुत्व को चुनौती दी थी। Monarchical states like Magad and Licchavi were in a great state of difficult choice as they were not able to extend their territories. मगध और लिच्छवी जैसे राजतंत्रीय राज्य अत्यधिक कठिनाई में थे क्योंकि वे अपने क्षेत्रों का विस्तार करने में असमर्थ थे। Among the Mahajanpads, there emerged conflict for power and supremacy. महाजनपदों में शक्ति और प्रभुत्व के लिए संघर्ष बढ़ा। मगध had an ambitious king called Ajatasattu who decided to conquer the neighboring regions. मगध का राजा अजातशत्रु महत्वाकांक्षी था। उसने पड़ोसी राज्यों पर विजय हासिल करने का निर्णय लिया। Due to warfare and marriage alliances, he was able to conquer Kosala and Kashi. युद्ध और वैवाहिक संबंधों की बदौलत वो कौशल और काशी पर विजय पा सका।